Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Hello and welcome everybody to the practice session on integers. Through some questions we will learn this very important topic of mathematics. Remember, integers are not just numbers. They are the numbers that help us to describe the real life situation like temperature, bank balance, height of any building or tower above the sea level or below the sea level, profit and loss, and many other similar concepts. Whenever we want to talk about something that goes up or down, increase or decrease, gain or loss, we use integers. Today, through solving some questions, we will understand what integers are, how to represent integers, how to compare them, and how to add and subtract them. By the end of this session, you will see that integers are all around us in daily life also. And once you understand how they work on the number line, calculations becomes very easy. Let's begin with few examples and slowly move into addition and subtraction of integers. Now, talking about integers, they are all the positive numbers. All negative numbers, and 0. So all the numbers come in the category of integers. Positive numbers means natural numbers or counting numbers which are +1, +2. जनरली इनका जो साइन होता है हिडन होता है +3. नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, and we know 0. 0 is neither positive nor negative. Let us now go through some questions and understand their operations. The question says, find the additive inverse of bracket -35 minus bracket -32 minus bracket -47. Multiple operations we have to perform, but first we have to understand what is additive inverse. Now, additive inverse is a number which when added to a given integer, it will give us 0. For example, if we have a number 2, then what should we add to this 2 so that our final answer becomes 0? इसमें हमें क्या ऐड करने से 0 मिलेगा? तो इसमें अगर हम ऐड कर दें -2, so plus into minus, bracket will act as a multiplication, plus into minus हो जाता है minus, so 2 minus 2 will be 0. So the basic concept of additive inverse is that value which when added to the given value will give us 0 result. ऐसा नंबर जो हम गिवन नंबर में ऐड कर दें तो हमें 0 आ जाए. Now how to find the additive inverse? Simple. First step you have to do is take the same number, second is change the sign. For example, if a number is 2, we have to find out the additive inverse of 2. Then you take the number 2. Right now its sign is no sign, means plus sign. You convert this sign to negative, from positive to
negative, it will be minus 2. So additive inverse of 2 will be minus 2. So basically in this question we have to first solve this equation and then find its additive inverse. For solving the question also there are multiple subtraction operation. Let us understand. I have already mentioned that the bracket will act as a multiplication. Question will be minus 35. Since it is a negative sign, it should be kept inside the bracket. Then minus bracket minus 32 minus bracket minus 47. Now here in the first term minus 35 and then you have minus bracket minus, so this is minus into minus which will become plus. Similarly this is also minus bracket minus which is minus into minus, this will also become plus. So my actual equation will be minus 35, keep it inside the bracket because it is a minus sign, plus 32 प्लस 47. नाउ यू कैन गो बाय योर वे. आप चाहें तो पहले प्लस कर लें 32 और 47 को, बाद में माइनस 35 कर दें. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू माइनस 35 एंड प्लस 32. नाउ माइनस एंड प्लस ऑपरेशन इज माइनस, साइन इज बिगर नंबर. यहां पर माइनस 35 और प्लस 32 करना है. एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो ऑपरेशन माइनस कर लीजिए. दिस इज 35 माइनस 32, वैल्यू आती है 3. और जो साइन लगेगा वो बड़े नंबर का लगेगा. दोनों में से बड़ा नंबर 35 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ आप माइनस साइन लगा दीजिए. माइनस 35 प्लस 32 विल बी माइनस 3. माइनस 3 प्लस 47. नाउ जब हमारा एक नंबर माइनस का और एक प्लस का, तो ऑपरेशन हम माइनस का करेंगे. इट विल बी 47 माइनस 3 विच इज 44. और साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे. यहाँ माइनस 3 और माइनस 47 में 47 इज अ बिगर नंबर, तो उसका साइन प्लस का है, तो हमें 44 को भी प्लस का साइन देना होगा. सॉल्विंग द इक्वेशन आई गेट प्लस 44. नाउ अब हमें प्लस 44 का एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, तो आप नंबर सेम रखिए, सिर्फ साइन ऑपोजिट कर दीजिए. इट विल बी माइनस 44. आंसर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस 44 विल बी माइनस 44. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Which of the following pair of numbers lie on the left side of minus 1? Now what is the meaning of numbers lying on the left side of minus 1? To understand this, we have to draw the number line. In the number line at the center comes 0. On the left side, we will have negative integers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. They will continue. So all the negative integers will be on the left side, and on the right side we will have all the positive integers. Say प्लस 1. जनरली प्लस 1 को हम प्लस 1 नहीं लिखते हैं, उसका प्लस का साइन हिडन होता है. सो आई विल सिंपली नाउ राइट देम एज 3, 4. सो यू अंडरस्टैंड दैट दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो जनरली इनका जो प्लस का साइन होता है छुपा होता है. अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही साइन है, तो जनरली हम प्लस का साइन नहीं लिखते हैं. सिर्फ अगर 4 लिखा होगा, इट मीन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो अलॉन्ग विद द होल नंबर. Along with the natural number, it will be a positive integer also. Now few things which you have to understand. When we move in this number line from left side to right side, जब हम left से right की तरफ जाएंगे, the number value will increase. Numbers क्या होंगे? Increase हो जाएंगे. Their value will increase. And if we go reverse, if we go from right side to left side, the numbers value will decrease. इसका मतलब जब आप 2 से 1 पे जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है. 1 से 0 पर जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. 0 से -1 पे जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. -1 से -2 पर जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. -2 से -3 पर जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब -1 ग्रेटर है, -2 छोटा है. सो नेगेटिव इंटीजर में आपको ये चीज याद रखनी है, इट इज द रिवर्स कंपैरिजन. वैसे हमें पता है 1 इज ग्रेटर देन 2. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी से 2 will be greater than 1. But when we talk about negative integers,
-2 एंड -1 की अगर हम बात करें तो इसमें ये उल्टा होगा, -1 विल बी ग्रेटर देन -2। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो स्मॉलर है और राइट साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर है। What is the meaning of this? Let us understand through an example. अगर हम लेते हैं एक नंबर -4, तो -4 के लेफ्ट में आएगा इधर -5. So we say that -4 is greater than -5. और अगर आप इसके राइट में नंबर लें which is -3, so we say that -4 is less than -3. इसी पर एक छोटा सा आप और पॉइंट रखिए, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सभी नेगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है दैट इज -1, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है सारे इससे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सभी से छोटे। द क्वेश्चन नाउ इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -1। तो -1 यहां है, इसके लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होंगे? इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो इसके लेफ्ट साइड में आएंगी। यू कैन सी द ऑप्शन नंबर सी, -5 एंड -11, they both are negative integers, so they will be on the left side of -1. Answer is option number C. Find the value of 130 plus minus bracket -153 plus bracket -163 plus bracket -140 plus 120 minus bracket -121 minus 121 minus bracket -153 plus bracket -130 minus bracket -163 minus bracket -140 and -120. Let us first open the brackets with the respective sign. Remember, bracket acts as a multiplication. So this will become 130. You see, this is plus bracket minus, plus into minus, this is minus 153. Again, plus into minus will be minus 163. Again, plus into minus is minus 140. Again, plus 120. Next, minus into minus, this will be plus 121. Again, minus 121. Again, minus bracket minus is minus into minus, plus 153. Next, plus into minus is minus 130. And finally, minus into minus is plus 163. Minus into minus, this is the minus sign, और ये 140 के पहले भी ब्रैकेट में माइनस है, तो अगेन माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 140 एंड फाइनली माइनस 120. अब यहाँ से आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप सब्सिक्वेंटली इनको माइनस करते हुए आए, पहले 130 माइनस 153 करें, उसके बाद माइनस 163 करें, उसके बाद माइनस 140 करें, बट दैट विल बी वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी लेंदी प्रोसेस. रादर देन दैट हम ये काम कर सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ प्लस कर लें, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें हम प्लस कर लें, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हें सॉल्व करें. बट उससे भी बेटर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर नंबर्स अलग नहीं है, नंबर्स सेम है, सिर्फ उनकी साइन चेंज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट 130, कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का साइन है, एंड यू लुक हियर ऑल्सो देयर इज माइनस 130, तो प्लस 130 एंड माइनस 130 सेम नंबर्स, ऑपोजिट साइन, दे विल कैंसल, ये दोनों जीरो बन जाएंगे. नेक्स्ट इज माइनस 153 एंड देन हियर एट द एंड यू कैन सी प्लस 153, सो अगेन दे बोथ विल बी कैंसल्ड. Next is minus 163 and here you can see plus 163, they both gets cancelled. Minus 140 and here you can see plus 140, so they both will be cancelled क्योंकि same values है, sign opposite है, तो वो दोनों zero हो जाते हैं. Next is plus 120 and minus 120, again they will cancel out. Finally plus 121 and minus 121 they will also cancel, सारी values हो जाएंगी cancel और हमारा आंसर बचेगा end में 0. Answer is option number B. Which of the following represents the negative integer? You have to understand the operation.
profit of 300 on selling an article. So profit means we have gained, so it will be a positive integer. A deposit of 5000 in a bank account. हमने अपने बैंक अकाउंट में 5000 डिपॉजिट किए, मीन्स ऐड किए हैं, सो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट, अ विड्रॉल ऑफ 9000 मीन्स हमने अपने बैंक अकाउंट में से 9000 रुपीज विड्रॉ किए, निकाले हैं, तो रिड्यूस किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं. सो दिस विल बी अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमने अपने बैंक अकाउंट में से -9000 कर दिया है. 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है. इट इज जस्ट मेंशनिंग अ डायरेक्शन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उस डायरेक्शन में हम 20 किलोमीटर आगे जा रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, तो इसको भी हम पॉजिटिव इंटीजर में ही क्लासिफाई करेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Next question, study the given number line carefully. Answer the following questions and select the correct option. If we are at -3 on the number line, then in which direction should we move so that the value increases? So friends, अगर हम -3 पर हैं और अगर हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है, so we know that we have to move to the right side. So answer to the first question will be to increase the value we have to move to the right side, और अगर opposite पूछा होता to decrease the value then we have to move to the left side. माइनस की तरफ जाना पड़ता, लेकिन इंक्रीज करना है तो हमें प्लस की तरफ आना पड़ेगा. सो आंसर टू द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. तो राइट के यहाँ पर दो ऑप्शन है, ए और बी दोनों है. हम लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. एट विच नंबर शैल वी रीच इफ वी मूव 6 स्टेप्स टू द राइट. आपको ये समझना पड़ेगा, राइट जाना मतलब प्लस करना होता है और लेफ्ट जाने का मतलब माइनस करना होता है. सो राइट मतलब हमें 6 स्टेप्स राइट जाना मतलब +6 करना. तो अगर हम -5 पर हैं और वहाँ से 6 स्टेप्स राइट्स मतलब +6 करेंगे, सो वी नो दैट माइनस एंड प्लस ऑपरेशन माइनस हो जाएगा. ये हो जाएगा 6 - 5 1. साइन पर हमें बड़े नंबर का लगाना पड़ेगा, बड़ा नंबर 6 है, उसका साइन प्लस है, तो ये +1 हो जाएगा, विच इज रिटन एज ओनली 1. दैट इज अ सिंपल वे, मैथमेटिकल वे. लेकिन अगर आप काउंट करके भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं. अगर आप -5 पे हैं और 6 स्टेप्स राइट जाएंगे, 1 -4 पे आएंगे, -3 -2 3 स्टेप्स हो गए, -1 4 स्टेप्स, 0 5th स्टेप, और 6 स्टेप में आप 1 पर पहुंचोगे. तो आप नंबर लाइन से भी इसे कर सकते हो, 1 आंसर आ रहा है, या आप मैथमेटिकली भी इसे कर सकते हो. मैथमेटिकली करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट राइट मीन्स एडिशन एंड व्हेन गोइंग लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. On a particular day in Shimla, the temperature at 5 p.m. was 2 degrees Celsius, but at midnight, means at 12 a.m., it was dropped to -8 degrees Celsius. By how many degrees did the temperature fall? तो बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि शिमला में शाम के 5 बजे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. This is at 5 p.m. और मिडनाइट मीन्स 12 a.m. रात के 12 बजे ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द टेम्परेचर फॉल, और फॉल इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो फॉल इन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय कितना डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसको, हायर वैल्यू. सो फॉल इन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय टेम्परेचर एट 5 p.m. which is 2 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्योंकि टेम्परेचर बाद में कम हुआ है, टेम्परेचर एट 12 a.m. तो इसमें से हम माइनस कर देंगे -8 डिग्री सेल्सियस. सो माइनस एंड माइनस, दिस विल बिकम प्लस. आवर आंसर विल बी 2 + 8 10 डिग्री सेल्सियस. सो द टेम्परेचर फॉल, रिमेंबर नॉट द टेम्परेचर बट द टेम्परेचर फॉल, 10 डिग्री का टेम्परेचर फॉल हुआ है. इफ यू वांट टू डू, यू कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन और बेस्ड ऑन द नंबर लाइन. आप नंबर लाइन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. वहां से अगर टेम्परेचर आप भी, अगर आप 2 पर हैं और 2 से -8 जाना है आपको, तो आपको 10 स्टेप्स लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, माइनस में आना पड़ेगा. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी 10.
Question number 7. In an exam of 50 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 3 marks are for every incorrect answer. If Radhika attempt all the questions and gave 21 incorrect answers, then what is her score in the exam? क्वेश्चन में बताया कि एक एग्जाम में 50 क्वेश्चंस हैं, अगर करेक्ट आंसर दें तो हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स हमारा स्कोर +5 हो जाएगा, और अगर हम इनकरेक्ट आंसर दें देन वी विल गेट -3, हमारा स्कोर -3 डिडक्ट हो जाएगा. द क्वेश्चन सेज राधिका हैज अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब उसने पूरे 50 क्वेश्चंस किए और इनकरेक्ट आंसर उसने दिए 21. अगर इनकरेक्ट आंसर उसने दिए 21 तो उसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 50 - 21 विच इज 29. हमें उसका बताना है कि उसका इस तरह से उसका स्कोर क्या है. तो उसको 29 करेक्ट हैं, तो फॉर एवरी क्वेश्चन शी विल गेट 5 मार्क्स. सो टोटल करेक्ट पॉजिटिव विल बी 29 multiplied by 5, which is 145. And for all the incorrect, it will be 21 multiplied by -3, which is -63. Now we have to operate plus 145 and -63. हम इसे माइनस करेंगे, प्लस माइनस को माइनस करेंगे. This will be 2, this will be 8. दोनों में बड़ा नंबर 145 है, तो इसका जो साइन होगा वो प्लस होगा. सो हर फाइनल स्कोर विल बी +82, विच इज ऑप्शन नंबर ए. A number is -6 less than the sum of the greatest negative integer and the smallest positive integer. What is the number? Understand the language of the question. Slightly tricky, very important to understand. हमारे एग्जाम में आने के चांसेस इस तरह के लैंग्वेज नहीं है, कम है, लेकिन अगर आपने इस लैंग्वेज को समझा तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग. अ क्वेश्चन सेज अ नंबर इज -6 लेस. एक नंबर है वो -6 लेस है, किससे? दैट इज वेयर द सेंटेंस इज सम ऑफ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो हमें हमारा जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो -6 लेस है, मतलब अपने नंबर में से हमें -6 को लेस करना है, मतलब -6 को माइनस करना है. और किस नंबर से करना है? जो कि सम है किसका? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. सो लेट अस टेक द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. Greatest negative integer is -1 and the smallest positive integer is +1. तो सबसे पहले हमें लेना है इन दोनों का सम. इन दोनों का सम मतलब इन्हें हमें प्लस करना है. ये प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी -1 + 1. -1 + 1 इज 0. इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 0 से -6 लेस है. -6 लेस देन 0. आवर नंबर इज -6 लेस देन 0. सो 0 से -6 को लेस करना है. ये लिख लीजिए 0, ये लिख लीजिए -6, और अब हमें 0 में से -6 को लेस करना है. लेस करना है मतलब माइनस करना है. सो दिस विल बिकम माइनस ब्रैकेट माइनस, ये हो जाएगा प्लस. 0 + 6, आंसर इज 6. दिस इज आवर नंबर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. The sum of two integers is -72. If one of the integers is 27, then find the other integer. According to the question, we have two integers and their sum is -72. and question में इन्होंने one of the integer भी दिया हुआ है, वो 27 है, तो हमें दूसरा integer निकालना है. Our equation will be integer plus integer is -72. दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन. अब इन्होंने दो में से एक इंटीजर दिया हुआ है, वो 27 है. सो लेट अस अज्यूम द फर्स्ट इंटीजर इज 27. सेकेंड इंटीजर को आप x ले लीजिए एंड दिस इज -72. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. 27 को लेफ्ट से हम राइट ले जाएंगे.
अभी उसका साइन प्लस है, साइड चेंज होने पर वो माइनस हो जाएगा. सो आवर इक्वेशन विल बिकम x इक्वल्स टू -72 -27. माइनस और माइनस अगर दोनों नंबर्स हो तो ऑपरेशन प्लस का हो जाता है. सो -72 एंड -27. आवर ऑपरेशन विल बी एडिशन 72 + 27 विच इज 99. पर साइन हमें माइनस का लगाना है. दैट इज -99 विल बी आवर अदर इंटीजर. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 11. Find the successor and predecessor of -62. To find out the successor and predecessor of -62, we know that we get the successor by adding 1 to the given number and we get the predecessor by subtracting 1 from the number. तो successor हमें मिलेगा +1 करके और predecessor हमें मिलेगा -1 करके. So let us find the successor first. The successor will be -62 + 1. माइनस और प्लस ऑपरेशन माइनस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लग जाएगा. 62 - 1 इज 61. साइन हमें लगाना है माइनस का. सो सक्सेसर इज -61 एंड इट्स predecessor we'll get by subtracting 1 from the given number. It is -62 -1. Minus we know operation is plus, but sign will be minus. So this is -63. So its predecessor will be -63. ये अंडरस्टैंडिंग आप नंबर लाइन से भी ले सकते हैं. सपोज दिस इज 0 on the left hand side. Imagine, assume that this is -62. अब -62 के लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा? इसके लेफ्ट में आएगा -63. लेफ्ट में आएगा मतलब इसके पीछे आएगा. लेफ्ट में जाना मतलब माइनस में जाना, पीछे जाना. तो -63 विल बी इट्स प्रीडेसेसर, इसके पहले का नंबर. एंड इट्स सक्सेसर विल बी 62 के राइट में क्या आएगा? राइट में हमें हमेशा सक्सेसर मिलता है, दैट विल बी -61. So -61 will be the successor and -63 will be predecessor. Now the question is, find the successor of predecessor of -62. इस क्वेश्चन का -62 से कोई लेना देना ही नहीं है, because you have to first understand the language. Successor of predecessor. What is the meaning of successor of predecessor? Let us understand this through successor of predecessor. Now, in a nutshell, successor of predecessor is the number itself. Let us understand through an example. Let's not take an integer, let's take a number 2. Predecessor of 2 is 2 - 1, 1. And the successor of 2 is 2 + 1, 3. But understand the language. Successor of predecessor, अगर हमने अपना नंबर लिया तो if we take the number 2, the successor of predecessor. So successor of predecessor मतलब predecessor का successor. तो पहले तो आपको 2 का predecessor लेना होगा जो कि 1 है. So predecessor of 2 is 1. पहले हमने ले लिया predecessor और अब हमें इस predecessor का successor लेना है. So successor of 1 वो हमें मिलेगा 1 में +1 करके, which is 2. So successor of 1 is 2. Successor of predecessor, अगर हमें 2 का सक्सेसर ऑफ प्रीडेसेसर लेना है तो 2 का पहले प्रीडेसेसर लिया वो 1 आ गया और उसका अब सक्सेसर लेना है तो वापस 2 आ गया. दैट इज व्हाई वी मेंशन दैट इट इज द नंबर इटसेल्फ. द मीनिंग ऑफ सक्सेसर ऑफ प्रीडेसेसर मतलब हमारे पीछे वाले नंबर का सक्सेसर. तो अपने पीछे वाले नंबर का सक्सेसर वी आर ourself. So that will be the number itself, क्योंकि 2 का प्रीडेसेसर है 1 और 1 का सक्सेसर है 2.
वही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है सक्सेसर ऑफ प्रीडेसेसर, तो प्रीडेसेसर का सक्सेसर, तो अगर हमारा नंबर है 2 तो पहले लेना है उसका प्रीडेसेसर जो 1 है और उसके बाद उसका सक्सेसर जो कि 2 है, सो दैट्स अ नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें ये इंटीजर के बात करने की जरूरत नहीं थी, बट वी हैव जस्ट कवर्ड अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल कि अगर हमें सिर्फ -62 के सक्सेसर और प्रीडेसेसर की बात होती तो इंटीजर में ये अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये -62 कंफ्यूजन में आप -62 का सक्सेसर -63 मत लिख दीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव में इंटीजर में होता है। हमारे को जनरल एक थॉट ये है कि 62 का सक्सेसर होगा 63, बट दैट इज फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आप नेगेटिव की बात करें तो -62 का प्रीडेसेसर होगा -63, 62 का प्रीडेसेसर होता है 61, दैट इज इन द पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जब हम बात करेंगे फॉर द नेगेटिव इंटीजर तो उसका वो सक्सेसर हो जाएगा। सो -62 एंड -61, सो नाउ -61 इज द सक्सेसर। तो ये थोड़ा सा रिवर्स कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप -62 लेते हैं, -62 के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे इट इज -63, राइट साइड में आप जाएंगे इट इज -61। So now predecessor is -63 and successor is -61। और यहां पर क्वेश्चन में बोला है सक्सेसर ऑफ प्रीडेसेसर, मतलब हमें -63 का जो कि प्रीडेसेसर है उसका सक्सेसर लेना है, सो दैट इट विल बी द नंबर इटसेल्फ। आंसर इज -62, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the following integers is greater than -25 but less than -17? तो हमें ऐसा इंटीजर बताना है जो -25 से तो ग्रेटर है पर -17 से स्मॉलर है। सो हमारा जो इंटीजर है वो ऐसा इंटीजर है जो -25 और -17 के बीच में आता है। -17 से वो छोटा है पर -25 से वो ग्रेटर है। क्वेश्चन को समझने के लिए हम वेरी सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें हम ये वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट डू इट विथ 0 इन द मिडिल एंड देन राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर लेफ्ट। हम ड्रॉ करेंगे -25 टू -17। नाउ वी नो that as we go from the left side -17 के बाद आ जाएगा -18, -18 के बाद आ जाएगा -19, -19 के बाद आ जाएगा -20, after -20 it is -21, then -22, then -23 and finally -24. So this will be our number line from -70 to -25। और आप देख सकते हैं ऐसी वैल्यू कौन सी है जो -25 से तो ग्रेटर है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो ग्रेटर होने लगेंगी या इंक्रीज होने लगेंगी, और अगर हम लेफ्ट में आएंगे -17 से तो वो स्मॉलर होने लगेंगी या डिक्रीज होने लगेंगी। तो हमारे कौन कौन से वैल्यू हैं जो यहाँ पर फिट हो रहे हैं? -24 हो रहा है, -23 हो रहा है, -22 हो रहा है, -21 हो रहा है, -20 हो रहा है, -19 हो रहा है, -18 हो रहा है या -17। अदरवाइज दूसरा आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ जाएंगे, सो दैट विल बी चैलेंजिंग। तो इनमें से जो ऑप्शन प्रेजेंट है क्वेश्चन में दैट इज ऑप्शन नंबर डी -19। अच्छा, ये -16 कहाँ होगा? -16 -17 के राइट साइड में होगा, जो कि -17 से बड़ा है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए -17 से छोटी। सो -16 विल नॉट बी द आंसर। -11 भी इसके और राइट में होगा जो कि ग्रेटर वैल्यू होगी। -26 -25 के लेफ्ट में होगा। सो आवर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -25, लेकिन ये वैल्यू -26 है, सो दैट इज नॉट ग्रेटर, वो तो स्मॉलर है -25 से, तो हमारा -26 भी आंसर नहीं हो सकता। और आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इफ x and y are two negative integers then the sign of x plus y is, so x and y are two negative integers means it is -x and it is -y. According to the question they are asking to add them, so when we add them what do we get? This will be -x plus minus, this is -y,
ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस ऑपरेशन विल बी प्लस बट साइन विल बी माइनस, इट विल बी माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई तो ऐड हो जाएंगे लेकिन इनकी जो साइन आएगी वो माइनस की आएगी, सो दे विल गिव अस अ नेगेटिव इंटीजर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। If the price of the diesel is rupees 8 in 2017, increased to rupees 10 in 2018, decreased by rupees 6 in 2019, and increased by rupees 16 in 2020, then what is the price of the diesel in 2020? So basically they are asking to perform the integer operation. Wherever we have increase we will add, and wherever we have decrease we will subtract the values. So let us start with 2017. In 2017 the price of the diesel was 8 rupees. In 2018 it was increased to 10 rupees. याद रखिए increased to 10 rupees है, increased by नहीं है। increased to 10 मतलब ये अब 10 हो गया है, मतलब इंक्रीज जो है वो 2 रुपीज का है। दैट इज नॉट मेंशन, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहां पर इंक्रीज्ड 2 लिखा है और कहां पे इंक्रीज्ड बाय लिखा है। इंक्रीज्ड 2 का मतलब वो 10 हो गया है, तो आप 8 को 10 इंक्रीज मत करके 18 नहीं कर दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज 2 मतलब दिस इज 10 इज द फाइनल वैल्यू नाउ इन 2018, एंड देन से नाउ डिक्रीज्ड बाय रुपीज 6 इंटू द डिक्रीज्ड बाय है तो अब आप इसको माइनस करना है। सो 2019 में ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 6, सो नाउ इट इज 4, दिस डिक्रीज्ड बाय 6, दिस इज द मीनिंग। एंड फर्दर दे से दैट इन 2020 इट इज इंक्रीज्ड बाय 16, सो ये जो प्राइस है 4 रुपीज, उस 4 रुपीज को 16 से इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज बाय 16 मीन्स यू ऐड 4 प्लस 16, दिस इज 20, सो दैट इज इंक्रीज बाय 16। 16 नहीं हो गया है, वो इंक्रीज बाय 16 हो गया है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में प्लस 16 कर दीजिए और आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द प्राइस इज 20 रुपीज। सो बेसिक इंटीजर ऑपरेशंस थे, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा, वही हमारा चैलेंज है इन द एंटायर पेपर। इफ यू आर थ्रू विद द लैंग्वेज यू विल बी securing 100% marks. Subtract the greatest 3-digit number from the additive inverse of 3190. 2-3 terms here. सबसे पहले हमें करना है subtraction, and subtraction of what? Subtraction of the greatest 3-digit number. So remember we have to subtract the greatest 3-digit number from additive inverse of 3190. First understand the equation. So from the additive inverse of 3190, we have to subtract the greatest 3-digit number. Which is 999. और एडिटिव इनवर्स ऑफ 3190 विल बी, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जो प्लस करके वैल्यू 0 आ जाए, और ढूंढने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू सेम रखेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। 3190 साइन इज प्लस, एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट greatest 3-digit number which is 999 from the additive inverse of 3190. तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा माइनस 3190 माइनस 999, and now you know that minus and minus operation is plus, so we basically have to add them. इनको हम प्लस करेंगे, 3190 plus 999. Ones place 0 plus 9 will be 9. Tens place 9 plus 9 will be 18. Write down 8. Carry 1. Hundreds place 1 plus 1 2. 2 plus 9 11. Write down 1. Carry 1. And this is 3 plus 1 4. So our answer will be 4189. But be mindful कि साइन यहाँ पर किसकी लगनी है। साइन यहाँ पर
जब दोनों नंबर नेगेटिव क्यों, ऑपरेशन तो प्लस का है लेकिन साइन माइनस का है, सो आवर आंसर विल बी माइनस 4189, ऑप्शन नंबर बी. If m and n are two integers such that m is 12 and n is the predecessor of m plus 7, then find the value of m minus 7. Question is slightly application oriented, understanding of the language oriented. They say that m and n are two integers. I have not given whether they are positive or negative. They say that m is 12, so it is a positive integer, and n is the predecessor of m plus 7, so n is equal to predecessor of m plus 7. Let us solve this. Predecessor of m plus 7, m is 12, so this value becomes 12 plus 7, 19, and we have to find out the predecessor of 19. Predecessor of 19 is 19 minus 1, which is 18. So we get the value of n as 18. Now the question is asking the value of m minus n. So n is 18 and we have to do m minus n. Be mindful about it, we have to do m minus n. M is 12, or rather plus 12, and minus 18 is also plus, so it is plus 18. So plus minus, it is minus, plus 12 minus 18. एक नंबर हमारा प्लस का है, एक माइनस का है, ऑपरेशन माइनस का हो जाएगा. सो 18 माइनस 12, दिस विल गिव अस 6, पर साइन हमें बड़े नंबर का लगाना होगा विच इज 18, उसका साइन माइनस है, सो इट विल बी माइनस 6. आवर फाइनल आंसर इज माइनस 6, विच इज ऑप्शन नंबर सी. Next question, which of the following options is incorrect? So we have to perform the operation and check every option. A very good question to understand the algebraic operation of addition and subtraction. The first option A is 27 minus 42. Now it is actually plus 27 and minus 42. And we know जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, one is a positive, another is a negative integer, then we subtract. So let us subtract 42 and 27. 42 minus 27 is 12 minus 7, 5, and 3 minus 2, 1. On subtraction I am getting 15, पर हमें साइन भी देखना है. दोनों में से बड़ा नंबर 42 है, उसका साइन माइनस है, so this will be minus 15. Option number A is giving us the value minus 15. It is correct, but it is not our answer because we have to find the incorrect. Let's go to the option B, minus 9 plus 17. When one number is minus, another is plus, operation होगा minus, so this will be 17 minus 9, which is 8. पर हमें साइन लगाना है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 17 है, उसका साइन प्लस है, so it will be plus 8, which will be written as 8. So option number B is also correct. It is giving us 8. Option C, minus 23 plus bracket minus 54. First plus minus, this will be minus, so minus 23 minus 54. Minus minus, our operation will be plus, become 23 plus 54, which will be 3 plus 4, 7, 2 plus 5, 7. और साइन हमारा दोनों नेगेटिव इंटीजर के केस में माइनस का लगेगा, माइनस माइनस ऑपरेशन प्लस बट साइन माइनस. दिस इज माइनस 77. हाउएवर व्हाट दे हैव डन हियर इज दे हैव गिवन द आंसर एज माइनस 31, सो दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज आवर आंसर. ऑप्शन डी, लेट अस चेक. माइनस 22 माइनस ब्रैकेट माइनस 22, दे गिव इट इज 0. लेट अस फाइंड आउट. माइनस ब्रैकेट माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सो दिस इज माइनस 22 प्लस 22. Minus 22 plus 22, they get cancelled. Answer is 0, which is given in the option. So option D is also correct. Our correct answer. Question says find the sum of 398 less than 624 and 719 more than minus 1716. तो हमें सम करना है. किसका सम करना है? 398 less than 624. So let's figure out what is 398 less than 624. 624 से 398 लेस, मतलब हमें 624 में से 398 को लेस करना है.
398 लेस देन 624 माइनस 624 माइनस 398, ये इसका मतलब हो गया. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 14 minus 8, this is 6. This is not 2, this is 1 now. 11 minus 9 is 2. And this is 5 now. 5 minus 3 is 2. So 398 less than 624 is 226. And the second value is 719 more than 1716. So 1716 से कितना more? More मतलब आपको कर देना है इसमें plus how much? 719. So we know that one number is minus, one is plus, तो ऑपरेशन हमारा हो जाएगा माइनस 1716 माइनस 719. सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज 16 माइनस 9, दैट्स 7. ये 1 अब 1 नहीं है, ये 0 हो गया है. सो यहाँ से आप बोरो करेंगे. दिस इज 10 माइनस 1, दिस इज 9. And again you will borrow from here. This is 6 minus 7. This is 16 minus 7. That is also 9. So we get 997. अब इसका साइन हमें देखना होगा. माइनस 1716 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर हमें माइनस की साइन देनी होगी. तो हमारे दो जो वैल्यूज आ रहे हैं वो एक आ रहा है 226, दूसरा आ रहा है माइनस 997. एंड नाउ वी हैव टू डू द सम ऑफ दीज टू. हमें इन दोनों को प्लस करना है. सो 226 प्लस minus 997. So minus plus, this will become minus. और 226 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है. प्लस माइनस ऑपरेशन हमारा फिर से माइनस का हो जाएगा, और साइन बड़ा नंबर है 997, उसका साइन माइनस है, वो साइन लगेगा. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 997 माइनस 226. This is 7 minus 6, 1. 9 minus 2, 7. And again 9 minus 2, 7. And we have to put a sign of minus. So our final answer is minus 771, which is option number A. You have to be just careful about the sign and their multiplication.